We are doing this question. Cos square x will be converted into 1 plus cos 2x upon 2 dx. And there's no need to convert. This is very simple to find the integration. Muhammad Tariq Kamal. So here we use the trigonometrical formula cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2 dx. If it is sine square x, the formula will be 1 minus cos 2x upon 2. There is a plus or minus difference. Sayyid Muhammad Asad. If cos square x 1 plus cos 2x upon 2, if sine square x 1 minus cos 2x upon 2. The difference of plus minus over there. If it is cos square, here it is a plus, sine square x, the minus sign. And here is minus 1 upon sine y dy. Now this is 1 over 2. If we separate it, integration 1 over 2 plus 1 over 2 cos 2x dx is equal to minus sine y dy. Now integration of 1 over 2 with respect to x will be 1 over 2x plus 1 over 2 integration of cos 2x will be sine 2x on the derivative of 2x, that is 2. This is 1 over 2. Here integration of cos 2x will be sine 2x upon the derivative of 2x, that is 2, is equal to minus integration of sine y will be minus cos y and plus c. Minus is cancelled by minus, minus minus plus. It will become 1 over 2 x plus 1 over 4 sine 2x is equal to minus minus plus cos y plus c. This is the final answer. I use the trigonometrical identities, trigonometrical formula here. Here I use the trigonometrical formula cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2. And if there should be not the cos square, it should be sine square x. We will use 1 minus cos 2x upon 2. We can't integrate sine square x or cos square x directly. So this is the answer. Understood all of you? Anything do you want to ask? Everything is clear, I think. Now we do some initial value problems. Uh, in problem 23 to 28,
Find an explicit solution of the given initial value problem. You'll find the initial value problem. That means by using the initial value problem, we will find the value of the constant. We will find the value of the constant, then that will be substituted in the question. You put the initial value problem, x and y, simplify this, find the value of c. After finding the value of c, in the same equation, we will put the value of c. Question number 23, dx upon dt. Dx upon dt is equal to 4 into x square plus 1, and where x pi by 4 is equal to 1. So dx upon dt means x is a function of t. X is a function of t. Question number 23. Dx upon dt is equal to 4 into x square plus 1. And the initial value is given x pi by 4 equal to 1. It means when t is pi by 4, x will be equal to 1. It means when t is equal to pi by 4, x is equal to 1. X is a function of t. So t is pi by 4 and x is 1. T is pi by 4, x is 1. This is the initial value problem. So first we separate. T will be shifted on the other side. X square plus 1 will come over there. Dx upon x square plus 1. 4 into dt. So variables are separated. Now integrate. So integrate of 1 upon x square plus 1 with respect to x. This will be tan inverse x. This is the formula for the tan inverse x. Is equal to 4t plus c. 4t plus c. Put the value. T is pi by 4. X will be equal to 1. When t is pi by 4, x is equal to 1. At x pi by 4 equal to 1. So when t is pi by 4, x is equal to 1. So it will become tan inverse x की value 1. Tan inverse 1 is equal to 4. T is pi by 4 plus c. 4 is cancelled by 4. And tan inverse 1 will be pi by 4.
tan inverse 1 will be pi by 4. So therefore, tan inverse 1 is 45 degree or pi by 4. We are using the radians over there. There is no degree. So we are using the radian. So here also we will use radian. Tan inverse 1 will be pi by 4. This is pi plus c. Find the value of c. C will become, pi will be shifted on the other side. Pi by 4 minus pi हो जाएगा. The answer will become minus 3 pi by 2. Sorry, 3 pi by 4. This is the value of C. ये value of C हम यहाँ पर substitute कर देंगे. This is, we put the name equation 1. Equation A. 1 लिख दें, A लिख दें, कुछ भी लिख दें और उसको सर्कल कर दें बस. You must circle it. That means this is the name of the equation. This is not the part of the equation. This is the name of the equation. अब ये यहाँ पर C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore substituting C is equal to minus 3 pi by 4 in equation A. So we will get tan inverse x is equal to 4t minus 3 pi by 4. This is the final answer. इनिशियल वैल्यू जो है वो सिर्फ हम इसमें पुट करके जो हम सॉल्व कर लेते हैं, पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फिर जो सी की वैल्यू आ जाती है वो फिर वापस इसकी जगह सी की जगह रख देते हैं. तो ये इनिशियल वैल्यू सिर्फ सी की वैल्यू पुट करने के लिए होती है, इवेल्युएट करने के लिए नहीं, सिर्फ सी की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए होती है. सर ये tan इनवर्स कहाँ से आया? फार्मूला है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है. ये तो आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे. तो जब तक याद नहीं होते आप शीट साथ रखें, लेकिन ये याद करने हैं. फार्मूला शीट साथ रखें, जब तक याद नहीं होते, जब याद हो जाए तो फिर आप डायरेक्ट कर लेंगे. क्योंकि असल में बगैर याद के आपको फिर उसमें ढूंढना पड़ेगा फार्मूला शीट में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है. याद हो जाए तो फटाफट आदमी के जहन में आ जाते हैं कि ये इसका इसका आंसर ये है. और अगर आप सिर्फ फार्मूला शीट रख के बैठे रहेंगे तो फिर आप ढूंढते रहेंगे कि ये अच्छा ये फार्मूला कहाँ पर है, ये है भी कि नहीं है. बाज औकात पता चला फार्मूला तो नहीं है, वो तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना था और वो फार्मूला नहीं है. आप उसको ढूंढने में आप एक दफा ढूंढा, दूसरी दफा ढूंढा, तीसरी दफा ढूंढा, उसमें आपने 15 मिनट जाया कर दिए ढूंढने में. इसलिए याद करना जरूरी है. तो शुरू में आदमी रख सकता है फार्मूला शीट, उसे याद कर ले, तो उसे देख देख के करता रहे. तो लेकिन ये कि याद करना जरूरी. अब मैंने आपको बता दिया कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स. और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आपको याद हो जाना चाहिए. अब ये मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स एक्स. और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, द सेम थिंग. हाँ तो भर देंगे, बोलो कर देंगे. हमजा खालिद.
64170. Just a minute. Okay. So that was the initial value problem. Okay. मैं आज या कल असाइनमेंट अपलोड करूंगा भाई इस पर, और 2 दिन का उसमें टाइम आपको मिलेगा। आपको 2 दिन में वो असाइनमेंट करके एलएमएस पे अपलोड करूंगा मैं असाइनमेंट। 2 दिन में जो है वो आप असाइनमेंट करके उसको एलएमएस पर पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना है। याद रखिए किसमें, पीडीएफ फॉर्मेट में। और उसमें तमाम जो है बड़े ही क्लियर इमेजेस होने चाहिए, पढ़ने के काबिल, और वो सीधे होने चाहिए। ये नहीं कुछ टेढ़ा, कुछ उल्टे लगा रहे हैं, कुछ टेढ़े लगा रहे हैं। 2 दिन का टाइम बहुत ज्यादा होता है। आपको उसको फौरन जैसे ही आपका असाइनमेंट नजर आए, आप उसको फौरन सॉल्व कर ले, और सॉल्व करके फौरन उसको अपलोड कर दें। आखिरी टाइम का इंतजार नहीं करना। आखिरी टाइम पे बाज़ औकात ही आपको पता है सर्वर डाउनलोड हो जाए इसका एलएमएस का, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे हम उसमें भेजेंगे और उसमें भेजे, मैं कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा सिवाय एलएमएस के। So you must submit on the LMS, not somewhere else. और ये आपने एलएमएस पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आज में इंशाल्लाह कर दूंगा। तो लेकिन टाइम आपको 2 दिन का मिलेगा, 48 आवर्स का टाइम कम से कम आपको मिलेगा, मे बी 60 आवर्स। तो कम से कम आपको 48 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो उसके अंदर ही अंदर आपने उसको फौरन जैसे सॉल्व करना है, उसको आप आखिरी मोमेंट का इंतजार नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू वेट फॉर द लास्ट मोमेंट।
क्योंकि लास्ट मोमेंट में सर्वर डाउन हो गया या आपकी बिजली नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, आपके पास मसला आ गया, तो फिर क्या करेंगे आप? So I will not accept any excuse. As soon as you receive the assignment, you must do it, solve it, and convert into PDF format and upload. और PDF फॉर्मेट में मैंने क्या बताया आपको, पेजेस जो हैं वो सीरियल के साथ लगे होने चाहिए। ये नहीं कि पेज पहला लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, फिर पांचवा लगा दिया, फिर सातवां लगा दिया, इस तरह कुछ नहीं। दे मस्ट बी इन सीरियल वाइज। हर एक पेज में पेज नंबर लिखा होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए, क्वेश्चन का नंबर होना चाहिए, और क्वेश्चन आप सीरियल के साथ सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बगैर सीरियल के सॉल्व नहीं कर देंगे, पहले 1 कर दें फिर 7 कर दें। ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा कि 3 घंटे का टाइम है बस आपने उसी में करना है। आप पहले सॉल्व कर ले, फिर उनको तरतीब से लिख के उन पर नंबरिंग कर दें। पहले सॉल्व कर लें क्वेश्चन, सॉल्व करने के बाद उनको तरतीब से लिख के उन पे नंबरिंग करें पेजेस पर। उसके बाद आप उसको लगाएं। पहले सॉल्व कर लें फिर नंबरिंग करें। पहले आपने पहला सॉल्व कर लिया, उस पर नंबर लगा दिया आपने पेज नंबर 1, फिर 2 दूसरा कर लिया, उसमें भी आपने पेज नंबर 2 या 3 जो भी है वो लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और पेज नंबर 3 है। सपोज पहला क्वेश्चन 2 पेज में आता है, क्वेश्चन 1 पेज 1 और पेज 2 में, तो थर्ड क्वेश्चन थर्ड पेज पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप 5 कर ले, फोर्थ को छोड़ दे बाद में कर ले, लेकिन आप उस पर पेज नहीं लगाएं, पेज नंबर नहीं डालें। तो 5वां क्वेश्चन करके सेपरेट रख दें आप। 6ठा क्वेश्चन कर ले, उसको सेपरेट रख दें, सीरियल से रख दें, नंबर नहीं लगाए पेज के। चौथा जब क्वेश्चन कर ले तो नंबर लगा दें। अगर आपको चौथा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो फिर छोड़ दें, फिर आपको ऐसे सीरियल लगा दें, सीरियल नंबर। और ये अब सवाल ये नहीं होता कि नहीं आएगा, इस असाइनमेंट है ये, तो आप इधर उधर से पूछ पाछ के बुक से देख कर करना ही है आपने। कोई ऐसी तो है नहीं कि कोई एग्जाम हो रहा है कि नहीं आ रहा तो बस छोड़ देंगे क्वेश्चन। तो वो आप करके फिर सीरियल्स के साथ उनको अटैच करें और फिर जो है पीडीएफ में करें, और सीधे सीधे इमेज लगाने हैं आपने, उसको चेक कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। सबमिट करने से पहले उसको चेक कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ। कन्वर्ट हो गया है तो फिर आप उसको लगा दें, वो ओपन होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। कन्वर्ट करके आप उसको ओपन करके देखें कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा उसको दोबारा करें, करप्ट ना हो गई हो कोई फाइल आपकी, उसको दोबारा करें और उसके बाद जो है आप उसको सबमिट करें। तो ये चीजें आपने याद रखनी बेटा, इसी तरह करना है काम। और एलएमएस पे काम करना सीखें, एलएमएस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हर चीज आप एलएमएस पे आपको करनी है। अब हम जैसे लोग सीख गए, बूढ़े लोग, आप तो माशाल्लाह जवान है और आपका तो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस, आपका तो सब्जेक्ट है। हमारा तो सब्जेक्ट भी नहीं, उस जमाने में पढ़ा था जब कैलकुलेटर भी नहीं होते थे। हमने उस जमाने में स्टडी की है जब कैलकुलेटर भी नहीं थे, हर चीज मैनुअल थी। आप माशाल्लाह नौजवान हैं और आपके तो हाथ में हर वक्त मोबाइल होता है, मोबाइल ही यूं समझे मिनी कंप्यूटर है वो तो। और हर एक के पास लैपटॉप होती है, जो मैं यूनिवर्सिटी में देखता था, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता था जो बगैर लैपटॉप के आए। मैंने किसी बच्चे को बगैर लैपटॉप के या बगैर मोबाइल के नहीं देखा, बगैर इसके स्मार्टफोन के यूनिवर्सिटी में। तो ये है कि आप उस पर एलएमएस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सीखें, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और क्विक अपने आप को क्विक करें, फास्ट जो है फॉर्मेट किया करें, क्योंकि आपकी सिर्फ स्पीड भी देखी जाती है, स्किल्स भी देखी जाती है। इसी तरह एग्जाम में भी होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। बच्चे को अगर पूरा भी पेपर आ रहा होगा और उसकी स्पीड ही नहीं है तो वो पूरा पेपर तो नहीं सॉल्व कर सकता बेटा, वो कम सॉल्व कर सकेगा वो। तो इसमें स्पीड भी देखी जाती है, तो हर चीज इसमें देखी जाती है, आपकी स्पीड भी देखी जाती है, आपकी स्किल्स भी देखी जा रही है, आपका नॉलेज भी जज हो रहा है, हर चीज जो है वो जज हो रही है। तो इसलिए ये मत कह दिया करें कि बड़ी देर लगती है, अरे भाई देर लगती है उसको फास्ट करें ना आप अपने आप को। जिस तरह एग्जाम में 3 घंटे का टाइम है, आप ये नहीं कह सकते मेरी तो स्पीड कम है, मैं तो ये पेपर 6 घंटे में करूंगा।
3 घंटे में मैं नहीं कर सकता। ऑन कैंपस अगर हुआ आपके एग्जाम सब कुछ, तो कैसे होते रहे अब तक। ये साल 2020 ऐसा जा रहा है कि इसमें ये मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन होते रहे। उसमें आप ये नहीं कह सकते मेरी तो स्पीड नहीं है, मुझे आता तो सब है। मुझे तो सर सब आता था, लेकिन मैं कर नहीं सका, स्पीड नहीं थी। या मेरा 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 पेन टूट गया था, मैं नहीं कर सका। मेरी इंक खत्म हो गई थी, मैं नहीं कर सका। भाई अगर नहीं कर सके तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी इंक खत्म हो जाए, आपका पेन टूट जाए, आप अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाए, एग्जाम में नहीं पहुंच पाए, तो आपको तो नहीं नंबर मिलेंगे, आप पास तो नहीं हो सकते बेटा। तो ये सब चीजें आपके साथ होंगी। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपके मार्क्स भी होने चाहिए, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, आपको आना भी चाहिए, आपकी स्किल भी होनी चाहिए, आपकी पेन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका इंक भी उसमें भरी हुई होनी चाहिए। सब चीजें होंगी तो आप कर सकेंगे पेपर। तो इसीलिए अब ये मेरी लाइट गई हुई है, पावर गई हुई है, तो ये चौके लैपटॉप है, ये चल रही है क्लास। पावर नहीं है इस वक्त, पावर नहीं है हमारे घर पे इस वक्त। ये 10:30 से अमूमन जाती है पावर। इसके टाइमिंग ऐसे, हम उनके टाइमिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, हमने अपने आप को उसके मुताबिक करना है। तो उसके मुताबिक यही है कि बैटरी इसमें लैपटॉप में अच्छी डाली हुई है कि जो 2 ढाई घंटे 3 घंटे चल जाए। और वो जो है वाईफाई के लिए हमने वो उस पे वो लगाया हुआ है, पावर पावर बैंक लगाया हुआ है। क्योंकि हमारे पास तो ना यूपीएस है ना जनरेटर है, लेकिन हमें उसका कुछ सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा ना बेटा, जब क्लास लेनी है तो। हम ये तो नहीं कह सकते मैनेजमेंट को कि नहीं भाई इस टाइम तो हमारी वो लाइट नहीं होती, हम इस टाइम क्लास नहीं लेंगे, हमारा टाइम चेंज कर दें। बिजली वालों का क्या भरोसा है, वो किसी वक्त भी टाइम चेंज कर देते हैं। पूरा पूरा दिन बाद औकात लाइट नहीं होती, ऐसा भी होता है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि किसी किस्म की परेशानी ना हो और डायरेक्ट आपका वो हो जाए। अब ये गर्मी है, कमरा है हमारे पास, तो ये मैंने वो लगाया हुआ है इमरजेंसी फैन, छोटा सा इमरजेंसी फैन लगाया हुआ है। तो ये सब चीजें हमने करनी है बेटा। इससे हमने ये जो भी मुश्किलात हैं उनसे हमने निपटना है। हमने मुश्किलात के सामने हथियार नहीं डालने हैं, हमने मुश्किलात से निपटना है। और ये तो खैर चलो कोविड तो अब की बात है। अब लाइट का तो मसला है। अब यूनिवर्सिटी वालों ने जनरेटर लगा दिए ताकि उसे निपटा जा सके हालात से। जब लाइट नहीं होगी तो क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं। तो उन्होंने जनरेटर लगा रखे हैं, जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर ही खराब होता है, उन्होंने दो लगा दिए, एक स्टैंड बाई में रहे। तो इसलिए बेटा ये सब चीजों से हमने निपटना है। तो आप इससे निपटने के लिए तैयार रहें, हालात जैसे भी हों, हमने उसके मुताबिक तैयारी करनी है। हाँ, एकदम इमरजेंसी में कोई मुश्किल आ गई तो वो अलग। जैसे अब शुरू में एकदम यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, तो ना लैपटॉप थे टीचर्स के पास, हम तो वहीं उस पे बैठ के काम करते थे, पीसी पर अपने डेस्कटॉप पे। पेपर वेपर बनाने का यही काम होता था हमारा, और कुछ ज्यादा तो काम होता नहीं था। पेपर वेपर बनाना है, कोई वेबसाइट तलाश करके वो कुछ उस पे से कुछ, अगर हमने हमें मटेरियल जो पढ़ाना है हमने वो उसमें मिल रहा है तो वो तलाश कर लेना है, सर्च कर लेना है उस पे गूगल पे जाके। कोई बुक तलाश कर लेनी है, कोई टॉपिक तलाश करना है आपके पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के, या फिर ज्यादा से ज्यादा पेपर बनाने हैं, पेपर या रिजल्ट अपलोड करना है। यही काम होता था और वो डेस्कटॉप पे हो जाता था, कोई मुश्किल नहीं होता था। नहीं भी डेस्कटॉप काम बिजली नहीं, कल कर लेंगे, वो ऐसा इमरजेंसी के काम नहीं होते थे। लेकिन अब जब ये कोविड का सिलसिला आया तो सबसे पहले हमने हमने उस पे शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे। फिर उन्होंने कहा नहीं जी जूम पे होना चाहिए, तो ये मैं वो खरीद लाया, लैपटॉप खरीद लाया। मेरे पास तो घर पे कंप्यूटर भी खराब पड़ा हुआ था कि जमाने में था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में बैठने लगा टाइम ही नहीं मिलता था घर पे, तो वो खराब हो गया पड़ा पड़ा। तो फिर लैपटॉप खरीद के लाया, वो भी उस पे OLX पे ढूंढा, क्योंकि एकदम वो हो गए थे वो लॉकडाउन हो गया था, तमाम मार्केट बंद, सब कुछ बंद। अब पढ़ाना भी जरूरी है, OLX पे तलाश किया, उसके घर गए, जाके लैपटॉप खरीदा।
और फिर ये थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से लोगों से मालूमात करके, कुछ यूनिवर्सिटी वालों ने हेल्प की, कुछ इधर उधर दोस्तों ने हेल्प की, कुछ घर में बच्चे बच्चे जो थे उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह जो है हमने भी सीख लिया, आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब का तक का काम हम कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं फाइल को पीडीएफ में, पीडीएफ से वर्ड में कर लेते हैं, इस तरह इमेजेस को पीडीएफ में कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, जूम के क्लासेस वो कर लेते हैं, ये सब कुछ फिर हमने सीखा है ना बेटा। तो सीखने से हर चीज आती है, कुछ यार दोस्तों से सीखा, कुछ घर में हमारे भतीजे भतीजे हैं तो उनसे सीखा, और कुछ यूनिवर्सिटी वालों ने ट्यूटोरियल दिए, कोई उन्होंने हमारी बाकायदा तो वो ली नहीं क्लास कि हमें सिखाया, वर्कशॉप लें, कोई हमें क्लास लें, कोई कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ट्यूटोरियल उन्होंने भेज दिए, वो हमने उससे कुछ सीख लिया। तो टीचर होना अलग बात है, ट्यूटोरियल होना अलग बात है। ट्यूटर टीचर अगर बताएगा तो उससे हम कोई क्वेश्चन भी कर सकते, ट्यूटोरियल पे हम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। तो ये है, दोबारा हमने सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मतलब का काम कर लेते हैं। इसी तरह आपको भी कोशिश करनी चाहिए, हथियार नहीं डाल देने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह। और अब ये असाइनमेंट में दूंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, वरना कल तक मेरी असल में आजकल तबीयत खराब है 2-3 रोज से, तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, बाहर कोशिश करूंगा कि आजकल में हो जाए। तो वो असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, वो आपने 2 दिन के अंदर अंदर करनी होगी। और लेकिन उसको 2 दिन का इंतजार नहीं करना कि लास्ट मोमेंट पे आप सबमिट करें, फिर वो कभी सर्वर डाउन होता है एलएमएस का, कभी जो है आपकी बिजली नहीं होती, कभी आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी पावर का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब चीजें होती है, इसलिए जितना जल्द से जल्द हो जाए कर ले आप। ये देखिए अब आई है हमारे यहाँ पावर, तो जितना जल्द से जल्द हो जाए वो आदमी को कर लेना चाहिए। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज है, इसके मैं पिक्चर आपको भेज दूंगा। ये पिक्चर तो बस ऐसे ही होती है, आप बेहतर यही है कि आप एलएमएस पे या लाइब्रेरी से किसी से नेट पर आप गूगल पर तलाश किया करें, वहां से डाउनलोड कर लिया करिए बुक। बुक का नाम मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, और अभी मैंने आपको बता दिया। तो ये मैं अब फिलहाल तो ये एक्सरसाइज आपको भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, वैसे भी क्लास खत्म हो रही है, 1 मिनट रह गया इसका। क्लास खत्म होने का खुद ब खुद मैं नहीं करूंगा तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी 1 मिनट बाद। तो मैं इसको क्लास को एंड कर रहा हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।